Good morning, all. Let us start maths with the chapter 9 halves and quarters. Halves का मतलब होता है आधा, that is 50-50. Quarters का मतलब होता है half का भी half, मतलब 50 का भी half, that is 25. Let us start and learn that how to find the halves and quarters. Mintu cat and Motu cat were friends. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. I will take it, said Mintu. No, I will take it, said Motu. While they were quarreling, there came Tittu Monkey. Hi, what is the problem? Why are you quarreling? He asked. We don't know how to divide this chapati between us. The cat said. Okay, don't worry. I will divide the chapati equally for both of you. He said. Cleverly, Tittu divided the chapati like this. Can you see that it's equal? No. The right-handed side is smaller than the left-handed side. These are not equal. The left part is bigger. Mintu and Motu said, oh, no problem. I will make it equal, Tittu said. He then cut a part of the left piece and ate it. Now is it okay? Are no. Now the right part is bigger than the left part. Then he cut a part from the bigger piece and ate it. When there was only a small piece remaining, he said, this is my share for the work. Tittu then quickly ate the last piece and climbed the tree. उसने क्या किया? चपाती को प्रॉपरली उसने हाफ किया नहीं और बोला कि अभी प्रॉपर करते करते लास्ट में क्या रह गया, तो चपाती थोड़ा सा ही बाकी रह गया. तो उसने बोला, टिट्टू ने बोला कि मैंने इतना वर्क किया तो ये तो मेरा पार्ट बनता है, तो वो खा के भाग गया. If the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? If you do not cheat like Tittu, the cats will have these parts. अगर चपाती को हमें प्रॉपरली हाफ में करना है तो उसको सेंटर में से मोड़ना पड़ेगा या उसको बीच में से कट करना पड़ेगा और बिना चीटिंग किए हम कैट्स को हाफ हाफ रोटी दे सकते हैं. हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा. If two more cats came for food, how will you divide one chapati equally for four cats? 4 बिल्लियों के लिए, अब बिल्ली के लिए कैसे कट करोगे? तो सबसे पहले रोटी को 1/2 मतलब एक बार मोड़ेंगे और फिर उसी रोटी को हम एक और बार मोड़ेंगे, सो उसके 4 पीसेस बन जाएंगे. Each of us got a quarter of the chapati. You are a good divider. हाँ, मैंने पहले ही बोला क्वार्टर मतलब हाफ का हाफ मतलब आधे का आधा, दैट इज क्वार्टर. हाफ ऑफ मैनी पीसेस. Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Reena. Circle the portion that Reena got. यहाँ पे डिवाइड करना है हाफ में, तो इसका हाफ कितना होगा? Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Reena. तो अगर हम हाफ करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे, राइट? इट इज क्वाइट इजी. सो वी विल यूज दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट. तो हम इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे. सो 3 pieces will go to Rani and 3 will go to Reena. How many pieces of chocolate are there? Total 6 pieces are there. तो यहाँ पे लिखेंगे 6. Total 6 pieces. How many pieces were left with Rani? So half of 6 is 3. हाँ, half a chocolate is as tasty as a whole chocolate. Many shapes from a half sheet. एक half sheet में से बहुत सारे shapes बनेंगे. Take a piece of paper, cut the sheet into 2 equal triangles so that each triangle is equal to half of the sheet. Shade the 2 triangles with different color. Draw different shapes using these triangles. One such shape is shown here. यहाँ पे एक शेप दिया है, आपको अपने हिसाब से जो पेपर शीट है उसको हाफ करके उसमें से कटिंग करना है और डिफरेंट कलर करने हैं और उसमें से डिफरेंट शेप्स बनाने हैं. Many ways to cut into half. I have made a rectangle into 2 equal parts like this. Each part is half.
सी हम जिगजैग बनाए, बीच में से कैसे भी कट करें, लेकिन जब उसको जोड़ा जाए तो वो प्रॉपर शेप बनना चाहिए। वी राइट इट एज 1/2. इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ 2. 1/2, 1 जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर है उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। जो 1 होता है मतलब वो पूरे पार्ट को हम इंडिकेट करता है, दैट इज 1। और जब उसको नीचे लिखा जाता है डिवाइड बाय 2, जहां पे देखिए डिवाइड बाय 2 लिखा है, डिवाइड बाय 2 मतलब उसका आधा, उसका हाफ कर देना। तो अगर उसका हाफ कर देंगे तो हम लिखेंगे कैसे उसको, 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/2, यानी कि आधा, 1 का आधा, दैट इज डिवाइड बाय 2। दे ट्राई कीपिंग 1 ऑन टॉप ऑफ द अदर, जो एक पार्ट है उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखने का ट्राई करना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन कट रेक्टेंगल इनटू हाफ, ड्रॉ 5 डिफरेंट पैटर्न्स। आई कैन शो यू 1 और 2। जैसे अगर ये है तो मैं उसको कुछ ऐसे भी कर सकती हूँ कट, उसका हाफ होना चाहिए, नहीं वेट, उसका हाफ होना चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द 1, तो उसको हाफ में कट कर सकते हैं। दूसरा कट कुछ इस तरह से, नो ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट डन। कुछ इस तरह से, यस कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। द रेस्ट 3 यू हैव टू मेड बाय योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू अप्लाई सम ट्रिक्स। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, अगर ये इक्वल है कि नहीं तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यू कैन यूज व्हाइट पेपर शीट और न्यूज पेपर to draw this and cut it, and you can check whether they are right or not. Many ways to make quarters. अभी quarters बनाने के भी बहुत सारे ways हैं, but उससे पहले I would like to say कि हमने half सीखा है तो हम half तक आज रखते हैं। We will continue the chapter quarter in the next part. Till that, learn what is half and what is full. Stay at home, be safe. Good morning all. So, till now we have learned many ways to make halves. Now, today in maths, halves and quarters, we will learn many ways to make quarters. I make 4 parts like this. Each part is a quarter and I can write it as 1/4. It means 1 part out of 4. दैट मीन्स किसी भी एक चीज़ के अगर आप 4 पीसेस करते हो तो जो एक चीज़ है 1 मतलब 1, वो 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे उसको 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी चीज़ का वो 4th पार्ट है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ड्रॉ 5 डिफरेंट पैटर्न्स। यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट पैटर्न्स बनानी है, शोइंग दैट आप उसको रेक्टेंगल को कैसे कट कर सकते हो इन 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 2 and 3, so 1 2 3 and 4 इसको इक्वल करना है। सो लेट अस मेक इट इक्वल, ट्राई टू मेक इट अप्रॉक्स। सो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4th पार्ट। वैसे ही दूसरा वे हो सकता है, 1 2 and 3 इक्वली बनाने हैं। लेट्स मेक इट अगेन, 1 2 and 3। सो अप्रॉक्स इस तरह से मैं 4 और बना सकती हूँ। द रेस्ट 3 यूल ट्राई टू मेक इट। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, ये आप बना सकते हो पेपर पे, सेंटीमीटर्स या स्केल रख के प्रॉपर उसको डिवाइड करके हम उसके 4 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। कटिंग द केक, Rajni's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts, for herself, for brother Raju, for father and for her mother. कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर, यहाँ पे इमेज दिया है, वहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू येलो या कोई भी अदर 4 कलर्स आपको डिफरेंटली करने हैं। हाउ मच डज ईच गेट,
अगर हम रेड रजनी के लिए रखते हैं और उसके फादर के लिए ग्रीन, उसकी मदर के लिए येलो और राजू के लिए हम कोई ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर डिसाइड करते हैं, तो देखने जाए तो एवरीवन विल गेट 1 पीस। मदर गेव हर शेड of cake to Rajni. Now color the total part that Rajni will get. रजनी विल गेट, यहाँ पे एक रजनी का खुद का पार्ट है रेड, अभी मदर उसको दे देती है तो दैट पार्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ रेड, तो 2 पार्ट्स विल बी रेड, तो रजनी विल गेट हियर 2 पार्ट्स। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स विच इज इक्वल ऑफ हाफ ऑफ द केक, मतलब पूरी केक का हाफ पोर्शन उसको मिल गया। So she can write it as 1/2, 1/2, या फिर ऊपर लिख सकते हैं 2 और नीचे आएगा 4। क्यों 2? बिकॉज उसके पास 4 पीसेस में से 2 पीसेस अवेलेबल है। अभी हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा, मतलब 4 2 का डबल है और 2 4 का हाफ है, इसलिए हम उसको दूसरे वे में 1/2 लिख सकते हैं। बिफोर रजनी's mother gave her shade to Rajni, she had only 1/2 of cake, which was 1/4 of the total cake. मतलब जब रजनी की मदर उसको देना चाहती थी उससे पहले रजनी के पास कितना था, तो कि हाफ पीस ही था, जो कि पूरी केक का 1/4 पार्ट था। कलर द शेयर राजू गॉट, राजू का जो केक का है कलर, उसको कलर करना है। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर। रजनी के पास है 2 पीस, राजू के पास है 1 पीस, तो हम टोटल कितने हुए 3 पीसेस, टुगेदर बोला है मतलब साथ में टोटल, तो टोटल 3 पीसेस आउट ऑफ 4 पीसेस, तो उसको हम लिखेंगे 3/4, मतलब 1/2 और 1/4 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। ग्रेडी कुंदू, Kundu is a greedy man. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. ज़्यादा ना खर्चा करके वो ज़्यादा सामान लेना चाहता है। One day he wants to eat pumpkin halwa. He tries to buy a big pumpkin with only ₹10. He asks the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. First pumpkin seller said 1/4 of the pumpkin is of 10 rupees. मतलब पूरे pumpkin के अगर इक्वल 4 पार्ट्स करें तो उसमें से 4 में से 1 पार्ट आपको मिलेगा 10 रुपये में। So this full pumpkin cost is rupees. अगर 4 पीस है टोटल, एक पीस के 10 रुपीज़ है तो दूसरे पीस का +10, थर्ड पीस का +10 एंड फोर्थ पीस का +10, सो 10 + 10 + 10 + 10 विल कम टू 40, और 10 × 4 करेंगे तो भी हमें मिलेंगे 40 रुपीज़। रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे फॉर द एडिशन। Kundu, ₹10, you should give me half of this pumpkin. First pumpkin seller, then you go to the next seller. He can give you half of such a big pumpkin for ₹10. I keep only good quality pumpkins. उसने बोला कि अगर आपको 1/4 नहीं पूरा आधा चाहिए pumpkin, वो भी 10 रुपये में, तो किसी और के पास चले जाइए, मेरे पास तो अच्छा वाला pumpkin है, I am not going to give you it for the 10 rupees. Kundu walks to the next seller and looks for a pumpkin for the same size. Kundu, how much for this pumpkin? Will I get it for ₹10? Second pumpkin seller, half. This full pumpkin will cost rupees kitna? Second pumpkin seller says that the half costs you 10 rupees. Then what will be the cost of the second half? Again 10 rupees. So the whole pumpkin will make 10 + 10, that is 20 rupees. Kundu, why not give me 3/4? मतलब आधा भी चाहिए और एक उसका क्वार्टर भी चाहिए। 1, 2 and 3 total pieces out of 4 pieces. Second pumpkin seller, run away, चली जाओ यहाँ से, go get your pumpkin from that man, वो वहाँ से ले लो। He sells such bad vegetables that he will give you a full pumpkin for the size of ₹10. वो बोला
कि वो तो उतना गंदा पम्पकिन बेचता है दैट ही कैन गिव यू दैट होल पम्पकिन फॉर ₹10. The greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. He looks at a pumpkin of the same size and asks him, "Will you give me this for ₹10?" Third pumpkin seller, "Why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkins free from the plant itself." Kundu is very happy. He climbs the roof of the house and then he fell down. क्या बोला उसने बोला कि अगर मुफ्त में आपको 10 रुपए में इतना बड़ा चाहिए तो ये क्यों नहीं करते कि खुद ही जाओ और झाड़ पर से तोड़ लो पम्पकिन. और वो तोड़ने जाता है एंड कुंदू फेल डाउन. मतलब लालच बुरी चीज है. नेक्स्ट इज यूजिंग अ प्राइस लिस्ट. यहाँ पे पर केजी का प्राइस लिस्ट दिया है. हम शॉप में भी जाते हैं तो वो बोलते हैं हमको कि 10 रुपये का 250 मिलेगा या 15 रुपये के किलो भाजी मिलेगी. ये सब हम सुनते रहते हैं. तो ऑलवेज जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब कि क्वांटिटी के ऊपर प्राइस उसकी डिसाइडेड होती है. तो यहाँ पे हमें पर केजी प्राइसेस दिए हैं फॉर टमाटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट एंड पम्पकिन. नाउ दिस गर्ल वांट्स टू बाय समथिंग. लेट अस सी हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट. पोटैटोज हैं 12 रुपीज पर केजी. हाफ ऑफ पोटैटो हाफ केजी that is 500 gram. Keep in mind that 1 kg is equal to 1000 gram. 1 kg is equal to 1000 gram and half of this is 500 gram and half of 500 is 250 gram. हमें सभी को 2 से डिवाइड करना है. We need to divide with 2. 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 500 और 500 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं we will get 250 of ग्राम. सो यहाँ पे टमेटोज हैं. टमेटोज की प्राइस है 8 रुपीज़. तो 8 रुपीज़ को हमें हाफ करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टोमेटो की क्वांटिटी भी हम हाफ कर रहे हैं. 1 केजी में से हम आधा केजी कर रहे हैं, दैट इज 500 ग्राम. तो 8 का हाफ करेंगे तो आंसर विल बी 4 रुपीज़. विच कॉस्ट मोर, हाफ केजी ऑफ ऑनियन और 1/4 ऑफ कैरेट्स. पहले तो ढूंढेंगे प्राइस फॉर हाफ केजी ऑनियंस. ऑनियन कितना है? 10 रुपीज़. तो हाफ केजी मतलब उसका आधा कितना होगा? 5 रुपीज़. कैरेट्स कितने हैं? 16 रुपीज़. उसका 1/4 बोला, मतलब उसको डिवाइड करना है हमें 4 से. यहाँ पे हमने डिवाइड किया 2 से, तभी कैरेट्स की प्राइस है 16. तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 4 से. तो अगर 16 के फैक्टराइजेशन करें तो वो आएगा 4 4 जा 16 और ये आएगा 4. अगर हम कट करते हैं तो वी विल गेट 4 रुपीज़ हियर. अगर ये नहीं आता है आप लोगों को देन यू कैन गो फॉर द डिविजन पैटर्न. 16 डिवाइड बाय 4. 4 is bigger than the first number, so we will take 2 numbers together and that is 4 4s are 16. Remainder is 0 and my answer is 4. So 4 rupees is the cost of 1/4, मतलब 250 gram of carrot. तो कौन सा ज़्यादा हुआ? Here the price of onion is 5 rupees which is higher than the carrot's price. What is the price of 3/4 of potatoes? Potatoes की कितना है? 12 रुपीज़. तो हमें 2 बार करना पड़ेगा. 3/4 बोला है. 3/4 is a combination of 1/4 and 1/2. तो हमें 1/4 प्राइस और 1/2 भी निकालनी है. So here the price is potatoes for 12 रुपीज़. So 12 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 का हाफ डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 रुपीज़ और 12 का 1/4 मतलब डिवाइड बाय 4 दैट इज 3 रुपीज़. सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द प्राइस ऑफ 9 रुपीज़ विच इज़ अ 3/4 प्राइस ऑफ पटेटोज. ये 3/4 पटेटोज के प्राइस है 9 रुपीज़.
Kirti is going for shopping. She has only 20 rupees with her. Can she buy all the things in the shopping list? अगर इसका टोटल करें हम शॉपिंग लिस्ट में केजी के हिसाब से, नहीं उसको हाफ केजी चाहिए, पम्पकिन 2 केजी चाहिए और कैरेट 1/4 चाहिए, तो उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फॉर द प्राइस लिस्ट. यहाँ पे प्राइस लिस्ट के आपको 2 खुद से क्वेश्चन बनाने हैं. बट बिफोर दैट लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम. पोटैटो half kg. So potatoes are of ₹6. Pumpkin is 2 kg. ये 1 kg का प्राइस है, तो मतलब हमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So we will get a price of ₹8. Carrot is 1/4 rupees and we know that we have found it in before for 4 rupees. तो 6 plus 8 14. 14 plus 4 that is 18 rupees. So yes, in 20 rupees she can buy all the things that she wants in her list. Practice time. What part of the whole is colored? Write below each shape. कितने पार्ट? पहले तो एक color the part of the shape which is written here. यहाँ पे हाफ दिखा है. That means वो बोल रहे हैं कि given shape का हाफ पार्ट, that is whole this part you need to color. 3/4 पार्ट मतलब अगर देखे जाए तो 1 2 3 एंड 4th पार्ट है, तो 3rd 4th पार्ट हमको कलर करना है. तो 3rd 4th पार्ट होगा ये 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. 1 पार्ट आउट ऑफ 4. 1 पार्ट आउट ऑफ 2 मतलब हाफ करना है. 1 2 3 4 5 6. So we will take 3 parts here. Then after 3/4. तो यहाँ पे आपको लाइंस बनानी है तो बना सकते हो, एल्स आप खुद से ही उसको कलर कर सकते हो. 3/4 मतलब मेजर पार्ट शुड बी कलर्ड. कट इट इन हाफ. ये आपको स्केल की मदद से उसको पूरा एक हाफ लाइन ड्रॉ करना है. यहाँ पे एक सैंपल मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से, और उसको कट करना है. Color half of the numbers. Now this exercise should be done by yourself only. One is shown here. एक आपको दिखाया है, उसके हिसाब से 1/4 या 1/2 जो भी है वो आपको यहाँ पे कलर करना है. Match the colored part as shown. देखा 4 पार्ट में से 2 पार्ट कलर्ड है, that is half, तो 1/2. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से सिर्फ एक ही ब्लू किया है, तो दैट इज 1 में से 4th पार्ट. तो यहाँ पे 1/4 है, दैट इज यहाँ पे आएगा. बट इसको क्या बोलते हैं हम? क्वार्टर. तो एक लाइन जाएगा क्वार्टर में, एक पार्ट जाएगा यहाँ क्वार्टर में, और उसकी लाइन हम नीचे लेके जाएंगे 1/4 में. देन आफ्टर होल, ये पूरे का पूरा ग्रीन है, तो हम उसको लेके जाएंगे यहाँ होल पे, और होल का मतलब होता है 4/4 या फिर 1. तो यहाँ पे 4/4 लिखा है, मतलब 4 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज 1. द नेक्स्ट इज ए 3 पार्ट कलर्ड आउट ऑफ 4. तो 3 है तो उसको बोलेंगे हम 3 क्वार्टर्स, और 3 क्वार्टर्स के यहाँ पे दिया है इधर, तो यहाँ तक हमें लाइन खींचना है. मूविंग फर्दर, मेक द अदर हाफ. उसका दूसरा हाफ बनाना है जो आपको ड्रॉ करना है. सेम हियर, हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर. अभी मीटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यूजिंग योर मीटर स्केल, कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर की आपको डोर काटनी है. On this string, mark the length of half meter, 1/4 meter and 3/4 meter. Using a string, draw a line length 1/2 meter on the floor. How many centimeter long is the line?
लाइन जो है 1 मीटर का, वो सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर का लाइन होता है 100 सेंटीमीटर का। उन्होंने पहले पूछा हाफ, तो हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे बाय 2। सो वाई वी आर डूइंग 100 डिवाइड बाय 2, व्हेन वी डू इट 100 डिवाइड बाय 2, we will get here answer 50, which is a half. Now we need 1/4 as well. 1/4 is a half of half, मतलब जो half है उसका भी half, that is 50 divided by 2, I will get here 25. And what is 3/4? 3/4 is the addition of 50 and 25, that is 75. So you will make a 3 dots here. First 1/2 on the 50th centimeter, then second 1/4 on the 25 centimeter, and the third dot on the third 4th meter, that is 75 centimeters. Using a string, draw a line length of 1/2 meter on the floor. जहाँ पे 50 सेंटीमीटर्स खत्म होता है फ्रॉम 0, you will draw a line there showing that this is the half meter. 1/2 meter is half meter is equal to 50 centimeter. 1/4 meter is equal to 25 centimeter, and 3/4 meter is equal to 75 centimeter, as we have just calculated. Can you see that when we add half and 1/4 we get 3/4? Right from the very beginning I'm explaining that अगर 3/4 चाहिए तो हमको 1/4 और 1/2 को ऐड करना पड़ेगा. The next part is sharing milk. अभी मिल्क है तो मिल्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. सी रिमेंबर करके यहाँ पे भी लिखा है. सो दिस आर द मेजर्स जो आपको याद रखना पड़ेगा. अगर मेजर्स आप याद नहीं रखोगे देन यू विल नेवर गेट द राइट आंसर. दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर. देखा यहाँ पे कलर्ड करके जो बॉटल दिया है ये वाला, दिस वन, ये 1 लीटर का बॉटल है. दिस मिल्क इज पुट इनटू 4 अदर बॉटल्स सो दैट ईच बॉटल हैज 1/4 लीटर ऑफ मिल्क. 1 लीटर दूध को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो हम 1000 मिलीलीटर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट द आंसर हियर 250 ml फॉर ईच बॉटल. हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव? आई जस्ट सेड 250 ml. Shan poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 liter and the other holds 1/4 liter. Shade the level of milk in each bottle. उन्होंने बोला कि शान ने पॉर किया तो एक में 3/4 आया और एक में आया 1/4. तो जो 1/4 है वो कम रहेगा और 3/4 का पार्ट ज़्यादा रहेगा. सो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट 4 out of 4, दैट इज 1 whole liter. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड? अगर 1/4 होता है 250 तो 1/2 होगा 500 विच इज अ डबल ऑफ दिस, और 3/4 होगा 500 प्लस 250 दैट इज 750. और एल्स व्हाट यू कैन डू इज 250 into 4 times, that is 1000 ml. Each bottle holds 250 ml milk. Balance the weight. यहाँ पे weight दिए हैं, आपको उसको ऐड करना है और बैलेंस करना है. कैसे? 2 kg तक. मैंने आपको पहले ही बोला 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम. तो हमें ग्राम को इकट्ठा करके हम केजी बना सकते हैं. केजी को इकट्ठा करके हम ग्राम नहीं बना सकते. केजी को डिवाइड करते हैं तो ग्राम मिलता है, और ग्राम्स को हम ऐड या मल्टीपल करते हैं तो हमें केजी मिलता है. केजी इज अ बिग वर्जन ऑफ ग्राम. चूज फ्रॉम द वेट अबाउट टू मेक 2 pans equal. In how many ways you can do it? There are many ways. 1 kg, 1 kg, 500 and 500, that will make 2 kg. फिर 1 kg लो, 500 लो,
250 लो एंड 250 लो तो भी हो जाएगा आपका 2 kg। फिर 500 और 500 लेते हैं और उसमें अगर हम ऐड करेंगे 250 एंड 250 तो 500 और होगा और 250 50 और 200 इतना और ऐड करेंगे तो भी 2 kg हो जाएगा। यहाँ पे आपको एम्प्टी पैन में वो पैन्स जो वेट है उसको ड्रॉ करना है और उसमें आपको उसके वेट के हिसाब से नंबर्स भी लिखने हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। 3/4 kg इज इक्वल टू 750 ग्राम। आपको हमेशा याद रखना है, अगर 3/4 डायरेक्टली नहीं आता है तो 1000 ग्राम का पहले हाफ निकालिए, वो जो हाफ आंसर आया 500 ग्राम उसको वापस हाफ कीजिए, यू विल गेट 250 ग्राम और फिर 500 यानी कि हाफ kg और 250 ग्राम दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट हियर 750 ग्राम। और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से वेट जो ऊपर दिए थे उसको कैलकुलेट करके ऐड करके यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। Why is it wrong? Kanan shared some parts as shown, but his friend Minnie says this is wrong. Explain why. क्यों गलत है? Because ये पूरा exact half या 1/4 नहीं है. The sizes are different. Practice time. There are 60 mangoes. 1/2 of them are ripe. How many mangoes are ripe? या मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगी बट ऑल्सो आई विल गिव यू दिस इज इन वर्कशीट। देर आर 60 मैंगोज। 60 मैंगोज में से हाफ पके हैं तो कितने, हाउ मैनी मैंगोज आर राइप मतलब कितने पके हैं, तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 2 से और जो आंसर आएगा दैट इज राइप मैंगोज। देर आर 30 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स। अगर 32 चिल्ड्रंस हैं और उसमें से हाफ गर्ल्स हैं तो बॉयज़ भी कितने होंगे, हाफ। तो हमें 32 को डिवाइड करना है 2 से एंड वी विल गेट द आंसर विच इज इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। देर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। हाउ मैनी स्टार्स आर रेड? क्वार्टर मतलब 1/4। टू फाइंड 1/4 वी नीड टू फर्स्ट डिवाइड 20 by 2 और उसका जो आंसर आएगा 20 को 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वी विल डिवाइड इट अगेन विथ 2 एंड वी विल गेट द रेड हाउ मैनी वी विल गेट द रेड स्टार्स। अभी उन्होंने पूछा कि कितने रेड स्टार्स नहीं है, मतलब रेड स्टार का जो आंसर आता है उसको 20 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा द स्टार्स विच आर नॉट रेड। Ravi wants a pencil. It costs ₹10. Arre 2. He gives a 1 rupee coin, 1/2 rupee coin and 1/4 rupee coin. Is it enough? No. 1 rupee coin is equal to 100 paisa. Now he has added 50 paisa and 25 paisa as well. 1/4 is a 25 paisa. So 50 plus 25 will make 75 paisa. So to make 100 paisa he need one more quarter rupee which he doesn't have. So no, it is not enough. So here we have understand today meter, then liter, then kgs and paisas. So these are the values जो हमें छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में वैल्यूज़ हमको डिवाइड करनी है। तो ये मेजर्स आपको याद भी रखने हैं, यू नीड टू लर्न दैम एंड यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। ट्राई टू डू दिस practical sums at your home when your mother or father goes to a shopping center, some करियाना स्टोर और वेजिटेबल वेंडर्स, तो उनके पास जाएं और खुद से उसको डिवाइड करना सीखें practically and mentally. Hope you have understood the half and quarters chapter very well, and I have provided you all the practice work notebooks as well. The book textbook question practice time will be sent to you. Still not understood? Please let me know, but stay at home and stay healthy.